नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया अपना 2024 में आने वाली फिल्में और शोज, जिनमें शामिल हैं बॉलीवुड के कई सितारे जैसे कृति सेनन, विक्रांत मैसी, हनी सिंह, फरहान अख्तर, तापसी पन्नू, विजय वर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, ए.आर. रहमान, अदिति राव हैदरी, अनुपम खेर, रिवानी कपूर और इन सब के ऊपर कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के साथ एक शो, दलजीत दोसांझ और परिणीति की एक फिल्म भी आ रही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि नेटफ्लिक्स 2024 में कौन कौन से टाइटल लेके आएगा। सबसे पहले कृति सेनन लेकर आई अपनी नई फिल्म जिसका नाम है दो पत्ती। भाई इसमें कृति सेनन के साथ साथ कनिका धिल्लोने से लॉन्च किया, लेकिन खास बात है इसमें टीवी के पॉपुलर कलाकार शहीद शेख भी हैं और साथ साथ काजोल भी। ये अभी नहीं लगा एक्चुअली, ये इन सब चीज़ों और नेशनल अवार्ड के पहले लगा था। आई थिंक हर एक्टर की लाइफ में या हर इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है जब उन्हें लगता है कि यार अभी ये तो अच्छा है बट और क्या, what next, you know? And for me, I feel creatively inclined. I always have, and I always wanted to be a part of films, tell stories, you know, in ways other than just being an actor on set. और मुझे एक ऐसी फिल्म के लिए करना था जहाँ मैं बहुत मैडली पैशनेट हूँ उस कहानी को लेकर। और दो पति वो ऐसी कहानी थी जो जर्म से लेकर, आइडिया से लेकर, आई वॉज विथ कनिका, यू नो, थ्रू द फिल्म। ऑल्सो आई थिंक मिमी के बाद कहीं ना एज एन एक्टर आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट आई वॉन्टेड टू फाइंड समथिंग जहाँ यू नो लेयर्ड हो, इंटेंस हो। एज एन एक्टर आई फील सेटिस्फाइड और अपने आप को पुश कर सकूँ, कुछ अलग कर सकूँ जो पहले कभी नहीं किया है। और बहुत टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। And I feel and I believe that sometimes when you can't find an opportunity that really excites you, you gotta create one. So I feel like Dopati was that opportunity, even as an actor, that I felt that I wanted to create. And I want to thank Kanika for creating it with me and for giving me my most challenging role, even as an actor. And this journey has been beautiful because जैसे आप बच्चे को देखते हो ना, पैदा होते हुए फिर धीरे धीरे बड़ा होते हुए उसके अलग अलग रूप, उसी तरह से ये मेरी छोटी सी बटरफ्लाई जो है उसकी पहली कथा है, आई वुड से। एंड जर्म से लेकर, आइडिया से लेकर उसे स्क्रिप्ट बनते हुए देखना, फिर उसे अलग अलग ड्राफ्ट से गुजरते हुए देखना, उसका म्यूज़िक, उसका लुक, वो किस तरह से पर्दे पर आती है, वो सारी उस प्रोसेस का पार्ट होना, आई थिंक वाज क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइंग। एंड आई होप कि मैं इसके बाद और ऐसी कई कहानियाँ सुना पाऊँ। As a writer, you know, stories really matter to me. Storytelling really matters to me. And, you know, I'm very fortunate that I have an audience as a writer. But, you know, the best gift that a teller and an audience can have is a well-told story. And प्रोड्यूसर बन के ही मैं वो कमिटमेंट पूरी कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। अपनी कहानी की प्रोड्यूसर बन के आई कैन फुलफिल दैट कमिटमेंट दैट माई स्टोरी कैन बी वेल टोल्ड एंड द विजन विल बी what it needs to be. So, and Dopati is that story which is very close to my heart. Kriti has been with me on that journey. It'll surprise you, it'll shock you, it'll enthrall you, it'll make you think. So, you know, I'm very fortunate that I got to turn producer with this particular story. And also, I have a platform partner, Netflix, with a global audience, a global reach, their commitment to storytellers and creators. So, I couldn't have found a better team to turn a debut producer and launch Katha. Now, coming to my most favorite producing partner, Kriti, yes. As she most beautifully put it, ki, छोटी सी बटरफ्लाई की पहली कथा, you know, she is an incredibly talented actor and I'm so proud to say that, you know, when I saw the rushes and the performance, I think this is her best work till date, and it's just the beginning because she's incredibly, insanely talented, and I'm so proud that, you know, we got to work together. Of course, you know, casting Kajol ma'am as a writer and a producer is a dream come true. She's a legendary actor, and, you know, seeing the screen light up with Kriti versus Kajol is any writer's and producer's dream. And above all, the captain of my ship, I would like to thank
my director, Bob, a very sought after film director. He's not here with us, but he's very excited about this. And all in all, I'm very happy that I got a dream team to debut as a producer and launch my company, Katha Pictures. मुझे थ्रिल में मज़ा आता है, बोरियत से डर लगता है. अच्छा और इनके कोई कैरेक्टर सीधे नहीं होते हैं. हाँ सो ये भी है कि कुछ ना कुछ लेयर्स रहते हैं, थोड़े ग्रे रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग एज एन एक्टर. एंड आई थिंक हम सब ग्रे हैं यार, कहीं ना कहीं. ब्लैक एंड वाइट तो बहुत ही कम लोग होते हैं. बट फॉर मी थ्रिलर, it's a genre that is very difficult to write, even more difficult to direct, because you have to keep the audience engaged throughout. You have to keep them guessing. And मैंने कभी इससे पहले thriller नहीं की, मेरी पहली thriller है. I would not call this a thriller. I would say it is an emotional drama thriller, because there is a lot of emotion in it. There is a lot of drama in it. Thrill एक aspect है. Teaser thrilling है, but फिल्म के अंदर बहुत इमोशन है. फॉर मी, मैंने ये नहीं सोचा था कि यार अच्छा इस जॉनर से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक जो आइडिया है, जो फिल्म कह रही है, जो बात कहने की कोशिश कर रही है फिल्म, जो फिल्म देख के ही पता चलेगा, बट वो बात जो थी वो दिल के बहुत करीब थी. और दैट आई शेयर्ड विद कनिका. इनके पास एक आइडिया था, इन्होंने दो आइडियाज़ को ऐसे मैरी कर दिया बहुत ही ब्यूटिफुली. और आई थिंक वो बात कहने का मन था. दूसरा लॉन्च था परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म चमकीला का लॉन्च, जहां पर दिलजीत के साथ परिणीति ने बताया अपने इस नए प्रोजेक्ट के बारे में. उसके गाने आज भी गाए जाते हैं, बहुत पॉपुलर, मगर बहुत ज़्यादा जो इससे कहते हैं ना कि मिट्टी की खुशबू वाला कलाकार. मुझे लगा कि उनकी पर अगर हम कहानी बनाएंगे तो शायद उनकी कुछ खासियत, वो खुशबू हमें भी आ जाएगी. क्या बात. तो हमने उस लिए ये फिल्म बनाई. This long dream for me to do a full Punjabi kind of music from after Tal actually. And when he approached, there were already songs, of Chamkila ji. I said, what am I going to do in this movie? Yes. There's songs already there. And we were very true to that stuff, and Diljit and Parneeti have sung that beautifully. We had another take. I said, why don't we have our take on the movie, make it like a musical? So some parts of it was like a Broadway musical, where you see characters talking about Chamkila. And that made a whole new, turn on the vision of the movie and how he is picturized. He's really reinvented himself. Imtiaz, you'll see a new Imtiaz in this one. सबसे पहले मैं जब भी इम्तियाज़ के साथ या रहमान सर के साथ, मोहित के साथ काम करता हूँ तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. पहली बात तो ये होती है. और दूसरी बात ये, जहाँ तक चमकीला की बात है, चमकीला ने एक तरह के गाने लिखे, लेकिन उन गानों को लिखते हुए उसके अंदर का जो इंसान था वो क्या सोच रहा था, उसको गानों के थ्रू, लिरिक्स के थ्रू अंडरलाइन करने की कोशिश की है. देखिए, इस चमकीला जी के जो ये फिल्म बनी है, ये मुझे जब मालूम पड़ा कि रहमान साहब और इम्तियाज़ भाई, इरशाद भाई, हम लोग रॉकस्टार वाली टीम इकट्ठे आ रही है, तो दैट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. और मुझे मालूम था कि कुछ नया, कुछ अच्छा आएगा. और रहमान साहब के साथ जब भी मैं कोई गाना गाता हूँ तो उसमें रहमान साहब हमेशा एक थोड़ा फ्रीडम देते हैं आर्टिस्ट को, कि जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. एंड ही इज़ वेरी जेनरस इन दैट. और उसमें हमेशा सर जो है हमेशा देखते हैं कि नया क्या ला सकते हैं, और तो वो बहुत अच्छा लगा. और दिलजीत भाई के साथ और परिणीति जी के साथ ये जो पूरा जो सेटअप हुआ, आई वाज रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस. ये फिल्म शूट करने से पहले मैं सोचती थी कि मैं ठीक ठाक ही पंजाबी बोल लेती हूँ और मैं काम चलाओ गाना तो गा ही लेती हूँ. फिर मैं दिलजीत जी से मिली और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो बोलते हैं ना रियलिटी चेक जो मुझे मिला कि कैसे गाया जाता है पंजाबी में, कैसे पंजाबी को बोला जाता है. आई थिंक मैं एक स्टूडेंट थी दिलजीत के सामने, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, इट्स ट्रू बख्श तो ही सिंह. बट जेन्युइनली वही था. जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, मुझे जैसे बोलते हैं ना एक ड्रीम रोल, ये वाकई में एक ड्रीम रोल था. मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस
पैनल में इन लोगों के बीच बैठूंगी और वो नाम चमकीला और अमरजोत जिनको मैंने बचपन से सुना है, मैं उनका किरदार प्ले करूंगी। रहमान सर का म्यूज़िक होगा, इरशाद साहब के बोल होंगे, मोहित सर जिनकी मैं फ़ैन हूँ पता नहीं कितने सालों से। आई यूज़ टू फील आई एम इन अ ड्रीम। बट फिर पहले दिन ही जब आप ऐसे लेजेंड्स को देखते हैं अपने सामने, आप एक स्टूडेंट बन जाते हैं। तो मेरी जो तैयारी थी वो इन लोगों से आई। आई यूज़ टू चेक माई डिक्शन विद दिलजीत एक्चुअली अलॉट कि ये वर्ड मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं, कैसे बोलना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ एंड चैलेंज हम दोनों के लिए ये था कि हमें अपने जैसा नहीं गाना था, हमें चमकीला जी और अमरजोत जैसा कोशिश करना था। हम कभी भी नहीं गा पाएंगे, पर हम चाहते थे कि हम जेन्युइनली उनकी तरह गाएं। तो वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अमरजोत जी की जो पिच है वो बहुत हाई है और मेरी जो आवाज़ है वो बहुत बेस है। अब आप देख रहे हो हंस रहे हैं क्योंकि इनको सच पता है। तो मैं बस सुर में हूँ, उसके अलावा अमरजोत जी जैसा मेरे अंदर कुछ है नहीं मेरी आवाज़ में। सो आई रियली हैड टू वर्क हार्ड एट सिंगिंग लाइक हर, विच आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स फॉर मी टू डू। बट आई होप कि मैंने कुछ ठीक ठाक कर लिया है। मेरे को लगता था कि मुझे चमकीले के बारे में बहुत पता है, ऐसा मेरा मानना था इनसे मिलने से पहले। अच्छा, इम्तियाज़ सर से मिलने से पहले मुझे लगता था कि मैं चमकीले को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। हमें जब पता चला कि बॉलीवुड में फ़िल्म बन रही है चमकीला, तो हम सोचा ये क्या बनाएंगे, मतलब हम बनाएंगे। हमने जोड़ी फिल्म भी बनाई एक, अच्छा, जिसके हमें राइट्स नहीं मिले तो हमने ऐसे एक फिक्शन बना दी। तो मुझे था कि जो अभी लोगों के दिमाग में भी है कि पंजाबी गाने हिंदी में कैसे बनेंगे, वो रिक्रिएट नहीं हो सकते, तो ये लोग क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पंजाबी में। तो हमने ऑलरेडी बना दी एक फिल्म। अच्छा, और मुझे लगता था कि ये लोग नहीं बना पाएंगे। जब हमने फिल्म बना दी, कोविड आ गया, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, मुझे सर की कॉल आई, इम्तियाज़ सर की। मुझे लगा ये सू करेंगे हम पे कि इनके पास राइट्स हैं और हमारे पास तो राइट्स नहीं थे। तो ये बोले कि मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ चमकीला में। मैं कहा जी पहले मेरे से कहानी सुन लो, हमने फिल्म बना ली है ऑलरेडी। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो ज़रूर। तो जब मैंने इनका पर्सपेक्टिव सुना तो वो बिल्कुल अलग था। अच्छा, वो चमकीले की फिल्म थी और वो चमकीला जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता था। क्या बात है। मैंने चमकीले के गाने सुने हैं, ये बात सच है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लिरिसिस्ट है, एक गाने वाले हैं, एक संगीत बनाने वाले लेजेंड है हमारे पास। चमकीला खुद लिखता था, खुद म्यूजिक उसकी धुन बनाता था, खुद गाता था और स्टेज पे खुद प्ले करता था वो तुम भी। तो वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था वो, वाकई में, वाह। तो उसकी स्टोरी इतने बड़े पर्दे पे कही जानी मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके गाने की चॉइस के पे डिस्कशन और हो सकती है, लेकिन चमकीला अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो जब इन्होंने मुझे सर ने ऑफ़र की फिल्म, तो जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैं सरेंडर कर गया जब इन्होंने चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी चमकीले के बारे में, वो कैसे खड़ा होता था, कैसे बोलता था। तो ऑब्वियसली म्यूज़िक था सारा इन्होंने संभाला। गाने पंजाबी में हैं जो स्टेज पे हैं, जो चमकीले के हैं। बाकी जो गाने हैं वो बैकग्राउंड में हिंदी सॉन्ग्स दोबारा रिक्रिएट किए गए हैं। बहुत सारे फैंस को ये दुविधा है कि गाने कैसे होंगे। गाने पंजाबी में, चमकीला हिंदी में नहीं गाया जा सकता, उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। फिर मेरे को टेंशन थी कि अमरजोत कौन बनेगी, अमरजोत कौन गाएगा, क्योंकि वो चमकीला से भी टफ गाती थी। वाह। तो जब उन्होंने बोला परिणीति जी हैं, तो मैंने इनके गाने सुने हैं, गा लेते हैं, पर अमरजोत को गाना एक अलग बात है, बहुत ही अलग बात, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना रोल निभाया। तो जो सर ने कहा जी, इम्तियाज़ सर ने, मैं तो सरेंडर कर गया। ये बोले खब्बे देखो खब्बे देख, सज्जे देखो सज्जे देख, तो वही। मिसमैच का सीजन 3 भी आएगा और प्राजक्ता कोहली के साथ साथ पूरी स्टार कास्ट थी जिन्होंने इसके नए सीजन का ऐलान किया। I don't know, the thing is, at the end, at the very core, it's about love. For me, this show, yes, the faces are young adult people, but for me, it's about love. Or
मेरे राइटर्स, को राइटर्स और मैं, हम सब उस यंग अडल्ट फेज से गुजरे हैं, हम सब ने वो हार्मोनल अपहीवल्स एक्सपीरियंस किए हैं. सो वी नो व्हाट लव इज लाइक, and that's all we're putting out there. Yes, the faces are these beautiful young adult faces, but at the very core it's about love. और love तो सबको ही पता है. नहीं, मैंने 2 सीजन बाद बोला कि आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर दिस शिट. बोला कि ये आई एम ट्वाइस द एज ऑफ द कैरेक्टर्स, तो नहीं होगा ये. सो गजल वाज वेरी नाइस एंड देन शी मेड द कैरेक्टर्स ग्रो अप. तो 3rd सीजन में कैरेक्टर्स थोड़े से 3 साल बड़े हो गए, तो वो एक थोड़ा फ़ायदा हुआ है. रिलेटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है. नाउ दे आर नॉट हाफ माई एज, बट थोड़ा गैप कम हुआ है. सो कर रहा हूँ कोशिश. So I think I would not even say experience, it's been a journey. Or been an incredible journey, because I like doing new things, but you need a partner to back you when you want to do new things. And I think the best way I can describe my relationship with Netflix is we're pushing the boundaries, but they're pushing the boundaries even harder, faster, better. And I think you're seeing that today. ये जो variety आप देख रहे हो, choice देख रहे हो, जो audience की what everyone's caught the fancy of. So I think for me, trying something new and having a platform like this, the other part I think which is fantastic, which I think everyone here has talked about, is that here's a platform where once it lands on it, it connects so strongly with audiences and such a diverse set of audience. तो आप जो mismatch देखेंगे, जो diverse audience to which it appeals to is really the beauty of the show. That's why we're in season 3. Because age group wise, demographic wise, appeal wise, small city, big city, जो charm है, a platform like Netflix makes it connect. Khali content without that right marketing and pushing all behind it, and I think that's the experience, that's the journey. It's always going to be very, very special because this was my first time out of YouTube. मेरे universe से बाहर निकल के, and I couldn't have asked for a better first show, better first director, better first writer, producer, also actor. बहुत सब कुछ ही चेंज हो गया है यार. मतलब एवरीथिंग इज वेरी वेरी न्यू, बट एट द सेम टाइम इतने मजे आ रहे हैं करने में कि पता ही नहीं चल रहा कि 3रे सीजन तक पहुंच गए हैं. बट ओवरऑल वेरी ग्रेटफुल. जाकिर अभी तो देखा है, अभी तो मिले. अच्छा. नहीं, आई थिंक ये सब छोड़ के बहुत सारा कन्फ्यूजन है. There's of course a lot happening in season 3. I think what we've shot so far, whatever we're going to present to the audiences, I think there's a lot happening. There's a lot of evolution of all the characters, not just Rishi and Dimple, but there are some incredible relationships and some incredible depths that all of those relationships go to. और मेरे को बहुत ज़्यादा excitement है उसका. इन सब के बीच फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड लाइव्स एक नए अंदाज में आएगा. इस बार दिल्ली की सोशलाइट्स भी इस शो में शामिल होंगी, और खास बात है कि रणबीर कपूर की बहन और ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बेटी रिद्धिमा साहनी कपूर भी अपना डेब्यू कर रही हैं इस शो के साथ. मुंबईची मुलगी married in Delhi and became a दिल्ली की बिल्ली. Well, Bombay is an island, you know that. Alibag is the mainland. शालिनी, पिक्चर अभी बाकी है, you know that ना? पिक्चर अभी बाकी है, you know that ना? I'm from Calcutta, guys. I'm from Kolkata. I am not part of this competition. There's no competition actually. Mumbai is the best. दिल्ली में लोग अपने लिए पहनते हैं, बॉम्बे में पैप्स को दिखाने के लिए पहनते हैं. अरे भाई लोग, दिल्ली में लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं है. अच्छा. अकाउंट्स प्राइवेट हैं. अच्छा. तो लोग अपने लिए पहनते हैं चीजें. We don't need brands. We are the brand. दिल्ली में ड्रामा है और बॉम्बे में क्वींस है. वो ड्रामा क्वींस है. और जहाँ नमक की बात रही, बॉम्बे में समंदर है, दिल्ली में नहीं है. अच्छा. ओहो. Delhi में, well, it's not in Delhi. Guys, let's leave something. We are near the Aravali Hills. Elevated. Aravali Open Hills. space. तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी एक बार फिर से दिखाई देंगे फिर हसीन दिलरुबा में, लेकिन इस बार इनके साथ होंगे सनी कौशल. सब अंदर से थोड़े से टेढ़े है, और ये जो टेढ़ापन है ये इसमें पल्प की जान है कि इट एक्सप्लोर्स द फैक्ट कि हम सब थोड़े से ट्विस्टेड है. हमारे अंदर देयर इज अ स्ट्रीक ऑफ द डेविल इनसाइड अस. सो ये जो पल्प है, ये जो हसीन की दुनिया है, ये उस डेविल को बुलाती है, उस डेविल को बेकन करती है. इस बार और रंगीन है,
और बड़ी है और धमाकेदार है। सबसे पहली चीज़ जो मन में आती है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना है, एक बढ़िया सी कहानी सुनानी है, उस 2 घंटे का वर्थ देना है। ये भी बात सच है कि जब हसीन दिलरुबा आई, जब बन रही थी, तो उस वक्त मन में सीक्वल नहीं था, उस वक्त ये नहीं था कि एक और। पर मेरा ये मानना है कि कभी भी जब भी आपके मन में सीक्वल आता है, वो इसलिए नहीं आता कि आपके पास एक और कहानी है, वो इसलिए आता है कि शायद पहली कहानी के वो जो किरदार थे वो कहानी से थोड़े बड़े हो गए। जब किरदार कहानी से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप एक सीक्वल मांगती है, तो वही हमारे साथ हुआ हसीन दिलरुबा में, इसलिए आ रही है फिर हसीन दिलरुबा। सर, जैसे आनंद जी ने और जयप्रीत जी ने बताया कि जितना प्यार मिला फिल्म को, ऑनेस्टली वो अनप्रेसिडेंटेड था। और क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे स्पेस में है जहाँ पे हम बहुत कुछ बता नहीं सकते फिल्म के बारे में, बट इतना ज़रूर बता सकते हैं, देयर इज़ लॉट मोर टेंशन, देयर इज़ लॉट मोर लव। बेइंतहा प्यार तो है ही ऋषु और रानी का, और देयर इज़ अ लॉट मोर मैडनेस, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स बीन फिनोमिनल जितना प्यार इस फिल्म को मिला है, लोगों ने दिया है, एंड उम्मीद है कि दोबारा उतना ही प्यार मिले। नहीं यार, मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, क्योंकि मुझे भी जैसे आनंद सर ने कहा पहले ही फिल्म देखकर लगा नहीं था कि इसका क्या सीक्वल बनेगा, बट इतनी बढ़िया तरीके से कनिका जी ने लिखी है ये। एंड अभिमन्यु का जो कैरेक्टर है वो, आई मीन विक्रांत ने सही कहा, वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या है, बट बहुत ही भोला भाला सा इंसान है जो इनकी कहानी में फंस जाता है तो सीक्वल तो कंटिन्यूएशन होता है एक तरीके से, बट मैं ये कहूँगी कि फिर आई हसीन दिलरुबा की रानी में थोड़ा ज़्यादा प्यार है, थोड़ी ज़्यादा हिम्मत है, और थोड़ा ज़्यादा पागलपन है, क्योंकि जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि ये सब लोग बता चुके हैं कि फिर में सब कुछ कुछ ज़्यादा है, पर मैं आपको अपना रीज़न देती हूँ कि मैंने फिर आई हसीन दिलरुबा क्यों लिखी। मैंने बेसिक सी बात है इसलिए लिखी क्योंकि मुझे खुद से लिखते लिखते ऋषु और रानी से प्यार हो गया था, और जब पिक्चर बन गई और रिलीज़ हो गई मेरा मन नहीं भरा। ऐसा लगा पिक्चर ख़त्म हो गई पर इन किरदारों से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, तो इनके प्यार में मैंने पार्ट 2 लिखना शुरू कर दिया। एंड ऑनेस्टली विक्रांत एंड तापसी, आई वांट टू टेल यू, जितना इन्होंने मुझ में ट्रस्ट डाला है, जितना इन्होंने they've given me the wings to fly. हसीन, फिर आई हसीन दिलरुबा belongs to Vikrant and Tapsi as my Rishu and Rani. And now coming to another reason why I wanted to write it was पंडित जी। घर में गेस्ट आते थे, बोलते थे पंडित जी की किताबें कहाँ मिलेंगी, तो मैं हस्बैंड यूज्ड टू से तो मूंछ लगा के इन्हीं से मिल लो क्योंकि यही है पंडित जी। तो पंडित जी को अभी बहुत कुछ कहना था, इसीलिए ये दुनिया मेरे से नहीं छूटी, मुझे इस दुनिया में वापस आना था, बहुत कुछ कहना था, मस्ती, अनप्रिडिक्टेबल, जो कि सब ने यहाँ बताया। एंड आई एम सो ग्लैड दैट हमारी हसीन दुनिया को और हसीन बनाने अब आए हैं सनी कौशल, वो मैडनेस का तड़का, वो भोलेपन का तड़का, सब कुछ बहुत कुछ लेके। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स हमारी ओरिजिनल हसीन टीम, भूषण जी यहाँ पर हैं, आनंद जी यहाँ पर हैं, एंड न्यू एंट्रेंट डायरेक्टर Jaypat sir is here. So thank you everyone for being on this ride with me. And yes, फिर आई हसीन दिलरुबा, really looking forward. Thank you. नहीं, देखिए ये फिल्म जब आनंद सर बना रहे थे इनिशियली, जब पार्ट 1 बन रही थी, तो जब पार्ट 1 मैंने देखी थी तो उसी टाइम मैंने आनंद सर को बोला था इसका तो सीक्वल बनना चाहिए। जैसे आनंद सर ने बोला कि इनिशियली ये डिसाइडेड नहीं था कि हम सीक्वल बनाएंगे, लेकिन जब आप, और एंड दिस इज़ अ एक्चुअल सीक्वल। नॉर्मली हम लोग फ्रेंचाइज को आगे लेके जाते हैं, फ्रेंचाइज बनाते हैं, नई कहानी होती है, एक्चुअल सीक्वल्स बहुत कम आती हैं। जिस तरीके से कनिका ने इसको लिखा है और जिस तरीके से ये फिल्म निकल के आई है, आई थिंक दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आएगी। एंड सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे एक्टर्स ने। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर गिविंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। कोटा फैक्ट्री का नया सीजन आएगा। पहली बात तो ये कि नर्वस मत हो, टू टेल माई सेल्फ दैट डोंट गेट ओवरवेल्म्ड एंड डोंट गेट नर्वस,
and most importantly, to not compare myself with Jeetu Bhaiya. You know, right? Because you know, it's the beginning of the end. If I started comparing myself with him and the love that he has. And the other thing was to brush up my chemistry. You know, so I felt like I was back in school. And it was great fun. हाँ, आई थिंक जो एक बहुत पॉपुलर लाइन है कि प्रोसेस इज़ एवरीथिंग और प्रोसेस से प्यार करो, तो ये उसी का ही हिंदी अर्थ है। और मेरी लाइफ में तो आई थिंक कुछ मोमेंट्स आते हैं जब तुम प्रोसेस से हट जाते हो, बट आई थिंक उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब मैं एनालॉजीज बहुत सारी हैं कोटा फैक्ट्री में, तो एक एनालॉजी क्रिकेट की दे सकता हूँ कि जब तुम खेलते हो तो तुम नहीं सोचते हो कि यार तुम फोकस करते हो कि यार बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए या इसका विकेट चाहिए, तो तुम उधर ज़्यादा ध्यान देते हो। बाकी फाइनल मंजिल क्या होगी, टारगेट्स क्या होंगे, वो बहुत मोमेंट्री होते हैं, चाहे वो फेलियर हो चाहे सक्सेस हो। तो मेरी लाइफ में तो बहुत मैटर करती है लाइन, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तैयारी ही जीत है। I think we always reach back into season 1 whenever we are thinking about Kota Factory, because that's the origin, that's the big bang, that's where it all started from. So we lean into season 1 a lot as to what the feelings were, what are the things that the audience really loved, and I think that the fact that so many people are involved in the making of this show, the input that we get from a lot of people, not just from PVF but also from Netflix, I think it all comes together in a beautiful little small simple show like Kota Factory. करिश्मा कपूर और डिम्पल कपाड़िया नजर आएंगी मर्डर मुबारक में। वाइल्ड वाइड वेस्ट की स्टारकास्ट भी इस मौके पर नजर आई। तो मैं हमेशा ये देख रहा होता हूँ कि दोस्त अपनी क्या मरा रहे हैं, कैसे मरा रहे हैं। क्या होता है, अपने ऊपर जब इंसान के बीत रही होती तब किसी को हंसी नहीं आ रही होती, जब दोस्त पे बीत रही होती है तो आपको उसमें कॉमेडी दिखती है। सही ये सही हो रहा है। वो तो फिर भी छोटा मैटर था, पर ये जो शूट हुई है उसमें एक्चुअली हमारी लग गई। दिसंबर जनवरी में हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, पूरी की पूरी पिक्चर मोर और लेस पूरी की पिक्चर सड़कों पे शूट हो रही थी, 6 एक्टर थे, पर लेकिन हाँ जान तो निकली हुई थी। नहीं, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट लव सर एंड अंकुर सर विद मी, जिन्होंने मुझे लाइक कम्प्लीटली फेथली उन्होंने मेरे को छोड़ दिया इन बदमाशों के साथ, जिनको संभालने में मुझे बेबी सिटिंग जैसा फील हुआ। बट देर ऑल वर वेरी खूबसूरत पीपल ऑन सेट एंड और एक दूसरे के साथ ऑलरेडी फ्रेंड्स है, तो बहुत ही बुरा था मेरे लिए कि यार ये इतनी बदमाशी कर रहे तो मैं कैसे संभालूं इन लोगों को। बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सो इट वाज नाइस। ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, तो घर वाली देख रही होगी। कह रहे घर वाली देख रही होगी, ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ ट्रैवलिंग लाइक पंजाब में जैसे आप भी आते हो हमारे पास, आपको पता ही है कि हमारा क्या रहता है वहाँ पे। बट ये जो फिल्म में दिखाया गया है ये उसके बाद ही हो सकता है कि जो फन हमने ट्रैवल में किया, जो इस फिल्म में देखने को मिलेगा वो पीने के बाद ही हो सकता है। तो हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि थोड़ा कुछ पीने के बाद, उसके बाद जो दिमाग घूमता है वो सारा स्टोरी। Strange, but I'll still share it with you guys. Please, हम तो खुद ही गॉसिप चाह रहे थे। तो मेरा राज के साथ ब्रेकअप हुआ था इनिशियली, और मैं बहुत रोई, मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ बॉम्बे छोड़ के। तो मेरा माई बेस्ट फ्रेंड, आई वेंट विथ हिम टू गोवा। ठीक है, वहाँ जाके उसने मुझे बहुत बोला कि मत रो, ठीक हो जाएगा, तू अपने करियर पे फोकस कर। तो मैंने लगा ठीक है कर लेती हूँ। फिर मैं वापस आई एंड आई गॉट बैक with Raj, and my friend didn't know this, and he saw us on TV, and he was so angry. बाजी मेरा बहुत बुरा हुआ। अभी चल रहा है मेरा चलता रहता है ब्रेकअप। उसका ब्रेकअप कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ही बंदे से चल रहा है या ये बहुत सारी कर ली थी? एक किस्से हैं, मैं उनमें से एक किस्सा बताता हूँ। मैं पुणे में शूट कर रहा था आउटस्कर्ट्स में, और मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था 1 हफ्ते तक। तो जब मैं पुणे सिटी वापस आया शूट ख़त्म करके, तो मेरे को मैसेज आता है मेरी किसी फ्रेंड का जिससे मेरी बातें हो रही थी कि आई गॉट एंगेज्ड।
और जैसे ही मैंने टीवी ऑन होता है, मैं होटल रूम में जाता हूँ, वो चाबी डालते हैं ना, लाइट जलती है, टीवी चला, और एकदम से गाना, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ रहा हूँ कि आई गॉट एंगेज, और एकदम से गाना चला, वो छंद से जो टूटे कोई सपना। मतलब लेजिट मेरा, मैं रोया भी था वहाँ पे। आपको शायद अभी मज़ा आ रहा होगा सुन के, पर मेरा दिल बहुत दुखा था बाजी। जब किसी से प्यार करो और वो ना मिले। ये जब भी रोता है तो हमारे पास ही आता है। मजे ही आता है। अच्छा, आप लोगों के पास नहीं, आता है? हमारे पास ही आता है फिर। अच्छा अच्छा, आपका बताइए ना, आप ऐसे मत निकलिए, आप बताइए सर। ब्रेकअप होते हैं, किसके नहीं होते? किसके सभी के लिए होते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हो आप। हाँ। तो फिर नेक्स्ट ब्रेकअप का मेरा किस्सा नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। मैं जलंधर से हूँ, तो हमारा ना ग्रुप होता था भाई, जे टाउन बॉलर्स। अच्छा। ऐसे ही हम कूल बनते थे वहाँ पे। हाँ। तो मेरे एक दोस्त है सिद्धार्थ, उसका ब्रेकअप हुआ, मतलब उसका उच्च कोटि पे प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, और एकदम उच्च कोटि का प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, ठीक और है। मतलब फुल गंभीरता के साथ उसका प्यार था। उसका ब्रेकअप हो गया और उस लड़की की शादी हो गई, मतलब हो रही थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब उसकी मतलब लगी पड़ी थी और सब कुछ है। तो सारे जो भी हमारे गैंग के बंदे थे, हमने कहा यार कोई बात नहीं, शादी शुदी हो गई है, अपन ना ट्रिप ट्रूप मार के आते हैं कहीं पे। तो किसी ने बोला गोवा चलते हैं, किसी ने बोला दुबई चलते हैं। तो बीच में एक हमारा दोस्त था, कहता भाई मदर नेचर के पास चलते हैं, बाली। तो हम गए भाई बाली, और हमने सोचा था कि उस लड़की का नाम शिवानी है, कि शिवानी की कोई बात नहीं करेगा उस पर। हम बाली पहुँचे और हमने वहाँ पे पूरा चेक इन वगैरह करा, चिलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। जैसे ही हम लंच पे नीचे गए हैं, सामने बैठी हुई थी शिवानी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने आई हुई थी, सेम रिजॉर्ट के अंदर। आउच। तो सिद्धार्थ के साथ जो हुआ, उसका हैप्पी बर्थडे। और जिस दोस्त ने बोला था ना कि भाई मदर नेचर के पास जाते हैं, I don't know I should be sharing this or not, लेकिन You should be. I चलो think you just can. in the spirit. Yeah. तो so I was dating somebody back then in college, और he was थोड़ा I think so 4-5 years elder. तो उसके बाद हो गया ब्रेकअप, किसी भी मतलब कॉर्डली हो गया ब्रेक। तो उसके कुछ 1 साल बाद उसकी फैमिली सारे प्रेशराइजिंग हिम कि शादी कर लो शादी कर लो। सो ही केप्ट मैसेजिंग कि कुछ है, सीन है, हो सकता है पैचअप। मैंने कहा नहीं यू प्लीज़ मूव ऑन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, तो लो ना, मतलब स्टार्ट सीइंग गर्ल्स। सो फाइनली ही लाइक द गर्ल और सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना कि जब तुम्हारे हाथ से कुछ चले जाता है, जो वो 1 साल तक था तो लगता था ठीक है, नहीं इट्स दिस इज़ द वे इट शुड बी, ठीक है, वी गुड एज फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि आई एम एंगेज्ड, तो तब तक ठीक था। फिर उसका रोका हुआ और उसने जब मैसेज करके फ़ोटो भेजी, मुझे लगा मैंने गलती तो नहीं कर दी ब्रेकअप करके, कि यार एक्चुअली प्यार तो करता था। तो फिर आई वेंट ऑन द, रोका नहीं, कुछ एंगेजमेंट, कुछ छोटी सी पार्टी रखी थी। तो वहाँ पे ही केम टू मी एंड इट वाज लाइक अ स्पिंस्टर, लाइक अ बैचलरेट, व्हाट डू यू कॉल दैट, जो प्री पार्टी होती है। सो yeah, like the singles, all the friends together. So उस पार्टी में he came to me and said कोई चांस है अभी? और मुझे लगा शादी की पार्टी में लड़का कह रहा है कोई चांस है अभी, engaged... उसके लिए आपको इशिता राज जैसा दिखना भी पड़ता है कि अगला तो लास्ट मुझे... मिनट तक ट्राई कर रहे हैं। नहीं, तो फिर मैंने एक्चुअली जब उसे मैसेज किया था ना, जब मुझे फीलिंग हुई कि ये मिस हो गया है, तो मैंने फिर लिखा आई थिंक सो आई मेड अ मिस्टेक। तो फिर अगली जब पार्टी, हम इस पार्टी में आए, तो उसने बोला कि एक्चुअली कोई चांस है। तो मुझे लगा नहीं अब तो ज़्यादा हो जाएगा, अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट्स गोइंग टू फार। मैं कहा नो यू गेट ऑन विद इट। वाह साहब वाह। दोस्ती के अलावा एक स्टूडियो और एक डायरेक्टर और एक क्रिएटर के बीच में ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इनकी कहानियों पे ट्रस्ट है, इनके जिस तरीके से ये कहानियाँ डेवलप करते हैं उस पर ट्रस्ट है। तो तभी उसी का नतीजा है कि हमने इतनी सारी फिल्में साथ में की हैं और अभी भी और बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं। और ये फिल्म बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है और बहुत पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड मेनी मोर विच वी आर डूइंग टुगेदर। और डब्बा कार्टून नाम का शो भी फरहान अख्तर और शिवानी रांदेकर ने लॉन्च किया। विजय वर्मा एक नए अंदाज में नजर आएंगे IC814 में। यार वो जब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो एक तो 5-6 बातें हैं जो हर आदमी को, जिसको वो हाईजैक याद है, उसको वो 4-5 बातें 6 बातें मालूम है, याद है। पर इतना बड़ा हाईजैक जो 7 दिन चले, वो 5-6 बातों के बारे में नहीं हो सकता। सही बात। वो हाईजैक क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो ये आसान है कि हमने कुछ लोगों को छोड़ा हमारे बाकी लोगों को बचाने के लिए, पर उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ,
तो जब मैं उस बारे में पता करने गया तो मुझे समझ में ये आया कि बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी थी, बहुत कुछ हुआ था उस 7 दिन में जो किसी को पता नहीं है। तो मतलब मैं उस वक्त के ऑफिसर से जो इन्वॉल्व थे इस पूरे एपिसोड में उनसे मिला, बहुत सारे लोगों से, त्रिशांत मिला जो पैसेंजर्स थे, पायलट थे, तो बहुत सारा कुछ निकल के आया जो शेयर करने जैसा था। और वो सारा कुछ है इस शो में, इसलिए इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे बेहतरीन एक्टर्स। त्रिशांत ने माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट लिखी है एक, जो उस सबको फैक्चुअली करेक्ट रखते हुए भी ड्रामेटिक रखना, एंगेजिंग रखना, इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। पूरे 2 साल निकल गए। मोनिका ने मुझे बोला था 6-8 महीने में ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसे 2 साल लग गए। अभी मोनिका से बाहर बात करता हूँ मैं। मैंने इसमें तो क्योंकि ऐसी घटना हुई जो जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं हो सकता। मतलब हाँ, फ्लाइट सिमुलेशन या ट्रेनिंग के टाइम पे हर पायलट को सिखाया जाता है कि ये अगर कोई आके ऐसे कोई हाईजैक करने की कोशिश करे तो आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। लेकिन जब होता है तो क्या बीतती है, क्योंकि मेरा खुशनसीबी थी कि कैप्टन हैं और उन्होंने मुझसे मिले, हम लोग साथ में फ़्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग के लिए गए। मैं उनके साथ बाजू बैठ के देखा कि उन्होंने क्या क्या किया, फिर मैंने अपने हाथ थोड़े चलाए उस सिमुलेशन मशीन पे, और जितना डर मेरे अंदर पैदा हुआ उस टाइम पे वो मैंने स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर दिया। बाकी इन्होंने कह दिया है कि कितना मज़ा लेते थे हम। कभी कभार काम कर लेते थे लेकिन घूमते ज़्यादा थे, मस्ती ज़्यादा करते थे। सो ऐसा ही है हमारा सेट, फन है। मतलब किसी का पैकअप हो भी जाए तो वो घर नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, नहीं, वो नहीं घर नहीं जा सकता, वो उधर ही बैठेगा जब तक सबका हो जाएगा फिर जाएगा वो। तो ऐसा था हमारा पूरा हिसाब। जैसी नहीं, हमने तो सोचना छोड़ ही दिया उस बारे में। हम तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। और सिन्हा साहब के सेट पे काम करने का मज़ा यही है कि जो भी तैयारी खुद करनी होती है और जो एक्टरों से करवानी होती है ये पहले ही करवा लेते हैं। सेट पे तो मस्ती करवाते हैं बस, भाई आज खाना लखनऊ से आ रहा है, आज वहाँ से आ रहा है, यही सब चलता रहता है। तो मज़ा आता है काम करने में इनके साथ, बहुत बढ़िया। मैं एटलीस्ट जाती थी, हंसते खेलते कूदते मज़ा कर रहे हैं, पर अचानक से समथिंग शिफ्ट्स। ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू कि अच्छा आज ये करेंगे, ऐसे करेंगे, पतरा तू अभी अपने उस स्पेस में। ही डजंट टेल यू एनीथिंग एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद हिम। तो एक बार ये शूट ख़त्म हुआ, मैं गई मेरे दूसरे शूट में। और इस सब की शुरुआत हुई मामला लीगल है नाम के शो के साथ। यानी कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स में 2024 में पूरे साल मनोरंजन की तैयारी कर रही है। ये तो बस झलक है, पूरे साल ये सब शोज दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।